अद्य पुण्य बेलारे आम स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग सोनपुर जिला शीर्षक सुवर्णभूमिर स्वरर 45तम ई पाठचक्र ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ସଂଯୋଜିକା ନୀଳକାନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଭବ୍ୟ ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଦିଗ୍ଗଜନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ ସଭିଙ୍କୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସକୁ ଏକାଗ୍ରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ତପସ୍ୱିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ନେଇ ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରଖେ। ସ୍ୱାଗତ ଭଉଣୀ। ଆଜି ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ चारु भाषमयी चारु भाषमयी जननी 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 वन्दे उत्कल जननी पूतपयोधिविधौत शरीर ताल तमाल सुशोभित तीर शुभ्रतटिनी कुल शिखर समीर जननी 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 वन्दे उत्कल जननी घन घन वन भूमि राजित अंगे नीलभूधर माला साजे तरंगे कळ कळ मुखरित चारु विहंगे जननी 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 वन्दे उत्कल जननी सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र जोगी ऋषि गण उठज पवित्र जननी 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 वन्दे उत्कल जननी सुंदर मंदिर मंडित देश चारु कला भଳି शोभित बेश पुण्य तीर्थ जय पुण्य प्रदेश जननी 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 वन्दे उत्कल जननी उत्कल सुरवर दर्पित गेह हरिकुल शोणित चर्चित देह विश्वभूमण्डल कृतवर स्नेह जननी 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 वन्दे उत्कल जननी कविकुल मौळि सुनन्दन वन्द्य भुवन विभूषित कीर्ति अनिन्द्य धन्ये पुण्ये चिर शरण्ये जननी 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 वन्दे उत्कल 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 जननी। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर भौणी। बहुत सुंदर भावरे आमर प्रसंग आधारित आज ओडिया अस्मितार इतिवृत्त सहित संपृक्त थिवा उत्कल वंदना गाई समस्त को विभोर करदेले। धन्यवाद जणेबी आसर तरफ। वर्तमान आसर रे उपस्थित थिवा श्रीमती जमुना मिश्र महापात्र को अनुरोध रखे से विवेकानंद को मोहनीय बाणी
ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ହେବେ। ସ୍ୱାଗତ ମହୋଦୟ। धन्यवाद साଙ୍ଗ। जय श्री राम। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାମ ରାମ। ଆଜି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର 1893 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଚିକାଗୋ ସଭାର ବିବେକ ବାଣୀକୁ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକାବାସୀ ଭଗିନୀ ଓ ଭାତୃବୃନ୍ଦ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ଓ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୋ ହୃଦୟ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ପୃଥିବୀର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସର୍ବଧର୍ମର ଜନନୀ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ତାହାର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଟି କୋଟି ନର ନାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେ। ଆଜିରେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପାଧିତ୍ୱର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିନକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ବୋଧନୀ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ରହିଛି। ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନୁରାଗ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭାଷାବିତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସମାବେଶ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ନିହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞତା ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦିଗକୁ ପ୍ରତିଭାତ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସରଳ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବା ସହ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବୈଠକରେ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗର୍ବିତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଭାର ସଭାପତି ରୂପେ ସେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଏ। ସ୍ୱାଗତ ଡକ୍ଟର ନାୟକ ମହୋଦୟ। ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ ସହ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ସ୍ୱାଗତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର 45ତମ ଇ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଇତିବୃତ୍ତ। ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିବନ୍ଧୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ବିଚାରଧାରା ପ୍ରମୁଖ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା। ସଂଯୋଜିକା ସୁଶ୍ରୀ ନୀଳକାନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟା, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦିକା ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଆମର ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ଭଉଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯମୁନା ମିଶ୍ର ମହୋଦୟା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ପରିବେଷିତ କଲେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟ ପାଳନ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଓଡ଼ିଆ। ମୋର ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ନେହର ସହିତ ମୁଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ। ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ
ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ଭାଷା, ପରମ୍ପରା, ଐତିହାସିକ ଗୌରବ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନ ସବୁଠାରେ ହେଉଛି। ଆଜି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଦର ମହକୁମାରେ ବି ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଜଣେ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଆଜି ସେଠି ପାଇଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଦେଶର, ଆମ ଜାତିର କଥା ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆଜିର ଯିଏ ଆଲୋଚକ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିବନ୍ଧୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଆମୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଅବସର ନେଲା ପରେ ବି ସେ ଜଣେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ବୟସ ଯାହାର ପାଖରେ ହାର ମାନି ନେଇଛି। ହୁଏତ ବୟସ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କବଳିତ କରିପାରେ, ମନକୁ ନୁହେଁ। ଏହି ପରିଚୟ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇସାରିଛୁ। ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିବନ୍ଧୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ବକ୍ତବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଇତିବୃତ୍ତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ। बहुत धन्यवाद नरेंद्र बाबू। एम आई ऑडिबल? हाँ सर, एम आई सर। ऑडिबल? हाँ सर ठीक। सोनपुर जिलार सुवर्ण भैंगेश्वर आनुकूल्य आज 45तम आलोचना चक्र आभासी माध्यम जोठिकी ओडिया अस्मिता इतिवृत्त शीर्षक रही। आज समवेत होता स्वामी विवेकानंद लोक संसद समस्त कर्मकर्ता, आजीवन सदस्य, सोनपुर जिलार सभापति, अन्यान्य सदस्या एवं ओडिशार विभिन्न प्रांत आसीथिबा समस्त को मु मोर नमस्कार जनाई मोर वक्तव्य आरंभ करने को जाऊँगी। यहाँ अप्रासंगिक हेब ना, कारण ओडिशा सरकार वर्तमान गोटे पक्ष पर्यंत ओडिया संबंधी विभिन्न कार्यक्रम जारी रखिंट ऑफिशियल माध्यम एवं आमे जानू जे एटा किछि इलेक्शन समय एटा गोटे राजनीतिक प्रश्न होता। आमे से प्रश्न को जीवा ना। 2019 निर्वाचन रे एटा बारी तिला, किंतु एटा आमे देखिबा जे ये अस्मिता होची गोटे मानसिकतार आभिमुख्य। अतीत आरंभ करी आज पर्यंत आमे आम राज्यर अनेक आलोचित अनालोचित तथ्य को यदि तर्जमा करवा तेबे यह निश्चित हेब जे आमर कलुषित लोकचरित्र आम अस्मिता ठारू आमको दूरी देइछला किंबा अस्मिता आम पाई अस्तमित हो सारी। किंतु वर्तमान आमे समस्ते शिक्षित, समस्ते ज्ञानर आभास आलोकित। से मृत अस्मितार जातीयता भाव होउची पूर्वजन्म आम पाई काय मनोवाक्य विवेकर पुनर्जागरण सृष्टि करिछि अस्मिता। सांप्रतिक काल आम देखा जे अस्मितार स्वरूप एवं यार प्रयोग संपर्क में यदि क्या प्रश्न करा जाए तेरे सठिक उत्तर होगापी किसी असमर्थ हे। निश्चित किसी दिन धरी राजनीतिक व्यक्ति ठारू सामाजिक गणमाध्यम यार चर्चा विषय थिला, किंतु वर्तमान सब थमिल एवं आमे देखिबा जे वर्तमान होची इधर वाइडर कनोटेशन रही
अस्मिता होची ओडिया अस्मिता सेटा कौन सी पॉलिटिकल प्लेन रे आमे चिंता करबार आवश्यकता नहीं एवं यही आचरणर धारणा प्रायतः अनुमय किंतु कार भाव प्रवणतार संपर्क में नुहे आम देखा ये सभा समिति रे गणमाध्यम अस्मिता शब्द व्यापक प्रयोग होती एवं एटाकू आम देखा जे एटार जदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा आम निश्चित भाव आम यहाँ गर्व एवं गौरव हेब कारण आम देखा जे पुरातन कालरू क्रमागत भाव ओडिया जाति केतेबेले अणओडिया शासन को सह करि पारे नाही एपरिकी दैन्य भाव को मध्य बर्दाश्त करि पारे नाही हाँ तार समृद्ध भाषा धर्म ऐतिह्य संस्कृति प्रति जदि विपद आशंका थाए अथवा थिले से व्यतिव्यस्त हो जाए एवं एथिरे ओडिशार इतिहास पृष्ठागुड़िक आम जदि परखिबा देखिबा जे ओडिया भाषा को बारंबार सहबा को पड़ी अन्य भाषाभाषी प्रभुत्व अत्याचार बंगाली मान द्वारा ओडिया गोटे स्वतंत्र भाषा न है उद्घोषणा पर यार सुरक्षा पाई ओडिया जातिर महाजागतिक आंदोलन सृष्टि होता सेतेबेले वर्तमान परी ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश नथिला दीर्घ 300 वर्ष राजनैतिक अस्थिरतार कराल चक्रव्यूह आम आंदोलन करी एतक आम अपरिवर्तित रखी एवं 1903 मसीह आरंभ होता स्वतंत्र प्रदेश टीए संघर्ष शेष राजा कपिलेन्द्र देव एवं पुरुषोत्तम देव जो दुईटा राजा आम देखला दीर्घ 300 वर्ष राजनीतिक अस्थिरतार कराल चक्रव्यूह आम जो अपरिवर्तित रखी रही ओडिशा वर्तमान भूगोल बदली जाइए एवं 1903 मसीह आरंभ होता स्वतंत्र प्रदेश जो संघर्ष यहाँ आम कृतकार्य शेष राजा कपिलेन्द्र देव एवं पुरुषोत्तम देव अमल ओडिशार भूगोल खोजार भित्ति नाला ओडिया भाषा मधुबाबू आह्वान एकत्रित हेले राजा महाराजा ठार आरंभ कर साधारण जनता परिशेष भारत देश स्वाधीन होबार 3 दशंधि पूर्वर भारत स्वाधीनता पूर्वर आम गोटे स्वतंत्र प्रदेश पाईगला 11 स्टेट 11तम राज्य भारत गोटे फेडरेशन है देश में भारतवर्ष सर्वप्रथम भाषा भित्तिक प्रदेश भाव में इंग्लिश सरकार द्वारा स्वीकृति लाभ कला एवं समग्र पृथ्वी रे सर्वप्रथम आ गए तार एफेक्ट देखा जे भाषा भित्तिक प्रदेश ऐतिहासिक अनुमान करती जे सर्वप्रथम भूखंड जहाँ यथेष्ट परवर्ती समय बांग्लादेश बड़ी एक भाषा भित्तिक राष्ट्र गठन होबार परिस्थिति सृष्टि होता से पाकिस्तान चक्रव्यूह मुक्ति पाइले तेबे राजनीतिक चापठार भाषार बंधन जे केते सुदृढ़ ताहा स्वतंत्र उदाहरण ओडिया भाषा छड़ा आउ कौन बही पारे स्वतंत्र प्रदेश भाव में 1936 मसीह ओडिशा गठन होगा पर एवं भारतवर्ष 1948 मसीह स्वाधीनता पाइबा परे ओडिया भाषा रे समस्त सरकारी कार्य चलवाई विधानसभा अनेक सभा पास होती किंतु कार्यकारी हो पारि ना 1963 मसीह पूर्ण भाषा आईन संशोधन विधायक विधानसभा ओडिया सह इंग्राजी व्यवस्था करने जो संशोधन होता
एप्रिल 1 1985 ठारू ही ओडिया भाषा सरकारी भाषार मर्यादा पाई ओडिशा सचिवालय ठारू ब्लॉक पर्यंत जेपरी सबु स्तर में ओडिया भाषार उचित व्यवहार हो पारिबो सेप्रति दृष्टि देवाक तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जानिक वल्लभ पट्टनायक दृष्टि देते। तेणु आम देखा जे वर्तमान जो अस्मिता शब्द रही अस्तित्व अस्मिता यहाँ मत गोटे वर्तमान विषय वस्तु जे जो देश में ओडिया अस्मिता बा ओडिया आम परिस्थिति परिभाषा प्रयोग होउची ओडिया आइडेंटिटी इंग्राजी रे गोटे कोटेशन देवाक मुझे जाऊँगी अस्मिता मीन्स प्राउड और आइडेंटिटी इट रेफर्स टू द प्राइड एंड सेल्फ रेस्पेक्ट एसोसिएटेड विथ बीइंग इन इंडिया इन ओडिया इट एनकम्पासेस how individual and community perceive themselves. This concept reflects confidence and pride in Odia culture, language and heritage. तेणु ओडिया अस्मिता निश्चित भाव में ओडिया आइडेंटिटी ओडिया अस्मिता बा ओडिया आम परिस्थिति परिभाषा वर्तमान जो प्रयोग होइछि एटा आम देखा जे यहाँ हूँ गोटे कल्चरल प्लेन आम हिसाब करवा कौन से राजनीतिक भी आम टाणीवा ना कारण आमर जो प्लाटफर्म अच्छी सेटा कल्चरल प्लाटफर्म है। तेणु जिते ओडिया भाषा को केन्द्रीभूत हुई परिकल्पित हुई ओडिया गोष्ठी चिन्हित ओडिया भाषा कौन अभिधान रे शब्द नथिला से समय इंग्राजी को आधार करी ओडिया नेशन बोली बा तार ओडिया प्रतिशब्द ओडिया जाति भाव में अभिहित कर आम तो नेशन हो पार ना कारण आम गोटे फेडरल स्ट्रक्चर एपरी अभिहित होगापर धारावाहिक भाव में प्राय से भाषा कैंद्रिक गोष्ठी को आखिर रखी ठीक से अर्थ में ओडिया भाषा जाति और तन्मध्य व्युत्पन्न जातीय जातीयता भाव स्वाभिमान परी अभिव्यक्तिर सब शब्द आसला। तेणु आमे देखिबा जे जो ओडिया जातीयता एटा निश्चित भाव में आम पाई एटा आम मध्य गोटे एकता आनिदेवाई समर्थ होइछि एवं भारतवर्षर पश्चिम भाग में प्राय 5000 किलोमीटर दूर में व्यवहार होता इंग्राजी भाषा सहित संस्कृत भाषार ओडिया भाषार मध्य किछि ना किछि पारिवारिक संपर्क रोचे तथापि केतक विद्वान कहती जे आम यूरोपीय भाषा परिवार किछि बुझुनु एसबू विदेशियों चक्रांत किसी विद्वान और समालोचक ये अस्मिता शब्दर नकारात्मक अर्थ अहंकार को अधिक प्राधान्य देता किंतु आम देखा जे आज 100 वर्ष रु अधिक काल पर ही यही शब्द एवं ओडिया रे अधिक चर्चित होची अस्मितार अर्थर अहंकार और मोह किंतु राधानाथ अस्मिता अर्थ को नकारात्मक अहंकार बा अहं ज्ञान अर्थ रे न नहीं सकारात्मक अर्थ व्यवहार करछंती। आ गोटे कौतूहल कथा नाम देखा जे अस्मितार अर्थ को विवेचना करा जाय पारे जे किसी कठोरवादी अभिधान पाई यह ग्रहणयोग्य न हो पारे से दिगटी है से साधारणतः आम देश में देखा जाए जे अनेक कन्या और महिला मान नामकरण अस्मिता एवं स्मिता रखा जाता ये शब्द गुड़िक साधारणतः भारतीय भाषा रे स्त्रीलिंग बाची शब्द स्मिता शब्द अर्थ स्मित हास्य है। आम देखा जे अनेक समय
अस्मितार जो राजनीतिक दिग जदि आलोचना करवा चर्चित निर्वाचन पूर्व ओडिया मन में स्वतः स्फूर्त भाव यही अस्मिता संकट आशंका जात होता एवं से भोट को आम विशेष जावा ना कारण सेटा से राजनीतिक पंखुड़ी भीतर को अनेक समय आम देखा जे जो यही अस्मितार सृष्टिकर्ता जी एवं आम देखा यही मासर 28 तारीख मधुबाबू को जन्मदिन है ताकू आम पालन कर स्वाभिमान दिवस भाव एवं से स्वाभिमान दिवस मध्य आम अस्मितार प्रतीक है यही समय आज भाया स्वतंत्र उत्कल प्रदेश वर्तमान गठन होबार 89 वर्ष हो गला यही स्मरणीय दिवस आम प्रणाम करूँ और स्मरण करूँ से मधुबाबू को जे कि जाति नंदीघोष जाति इतिहास जातिर निर्झर तहु झरे तथा जाति प्राणधार एम आई ऑडिबल शुभुची शुभुची हाँ ठीक हाँ आज्ञा शुभुचे अस्मिता मूर्तिमंत प्रतीक होती मधुबाबू मधुबाबू जातिर भगीरथ जे कि निज जीवन चेष्टा करते सर्वभारतीय स्तर में कांग्रेस राजनीति रे गोटे टाणुआ नेता हो पारिथान्ते किंतु यही प्रदेश पाई से निजर जीवन को सैक्रिफाइस कर जो गांधीजी 2-3 थर ओडिशा आसती सहित देखाई एवं ओडिया अस्मिता निश्चित भाव गर्व करता से समय से जोता कारखाना तारकसी काम जोता कारखाना रे से पेनिलेस हो गले जो जोता कारखाना रे देखुले से टिके किसी डिफेक्ट है गल के काढ़ी दे एवं से मधुबाबूंकर आप्राण उद्यम फल आमर ये अस्मिता आम फेरी पाइला एवं स्वाधीनता बहुत आगुरी आम 6टी जिला को लेकर स्वतंत्र प्रदेश गठन करने इंग्रेज सरकार अनुमति देले कटक पुरी बालेश्वर गंजाम कोरापुट और संबलपुर बाकी अंचल सब रहा राजा राजूर शासन रे से शासन इंग्रेज मान द्वारा नियंत्रित है आम देखा ये मधुबाबू यही जो आप्राण उद्यम करी यही प्रदेश को एकत्रीकरण करथिले एवं गोल टेबुल बैठक रे जोगदेवा इंग्लैंड जाइथिले तांको आउ थरे आमे देखिबा जे से यूरोपियन हिस्ट्री से जर्मनी एकत्रीकरण एवं इटाली स्वाधीनता आंदोलन से प्रतीक भाव में पार्लाखैम्डिन महाराजा को अनेक इतिहास विस्मार्क भाव में तुलना करछंती से राजा हेले मध्य चाहूले किपरि ओडिशा लोक मैंने गोटे स्वतंत्र प्रदेश पातु ओडिया भाषा ऐतिह्य साहित्य भास्कर्य तो बंची रो यहाँ तांकर मध्य इच्छा था एवं सेटा मध्य से कृतकार्य होते कल्याण से 1803 रु 1903 1803 रे इंग्रेज माने ओडिशा दखल कले एवं 1903 रे जो
मधुबाबू द्वारा प्रतिष्ठित जो आंदोलन सेटा 100 वर्ष पर आरंभ है एवं से कृतकार्य हेले आम देखा जे लाइट लिवि लाइट ए निंदे तेणु ओडिया अस्तित्व और अस्मिता जो वर्तमान संकट देखा से संकट विशेष दिन रहा एवं अनेक घात प्रतिघात मध्य आमर जो ओडिया जाति प्रदेश आम फेरी पाइला पृथ्वी मानचित्र संकुचित हेले ओडिया प्रदेश भावे तार से गोटे स्थान संरक्षित है सेटा आमको सुनिश्चित कर एवं तार श्रेय जीव उत्कल गौरव मधुसूदन दास एवं गोपबंधु दास पंचसखा फकीर मोहन चंद्रशेखर बेहेरा ये माने सब ओडिया अस्मितार गोटे गोटे मूर्तिबंत प्रतीक एवं नव सूर्योदय पूर्वर राति अमांधकार आसला बड़ी 1803 मसीह 1877 मसीहा मध्य जो नौक दुर्भिक्ष ओडिया मेरुदंड को संपूर्ण भाव में भांगीदेला 10 मिलियन पीपल लोक मान मृत्युवरण कले एवं आम देखा जे से समय ओडिशा रे रास्ता घाट नहीं किसी नहीं रेवेन्सा साहेब को लोके फल्स रिपोर्ट देदेले जे महार मान करे गाँ गहर बड़ चाषी मान बहुत चाष शस्य रही से किसी करें ना एवं से आत्मसंतुष्टि लाभ कले 1866 मसीह जो महाविपत्ति मधुबाबू को मार्गदर्शन जाति नंदी घोष द्रुत गति जावाई ताकू प्रेरणा जोगाइला एवं आम देखा जे आज मधुबाबू से गोरा कबर तांकर निश्चित भाव में यही जाति को आशीर्वाद प्रदान करेंगे जे आम बहुत आग को चली जाइछू एवं यही देशपाई जहाँ परिवार थिला साधारणतः आम पाई से जहाँ कर निश्चित भाव आम तांको कृतज्ञता अर्पण करवा एवं ओडिया भाषा और संस्कृति भाव उपरे जो प्रचंड आक्रमण चलीला एवं ओडिया गोटे भाषा आंदोलन पश्चिम ओडिशा रे से नेतृत्व नहीं आमर श्रीपति मिश्र माने ओडिया भाषा उच्छेद पाई जो उडबन साहेब कहले जे संबलपुर ओडिया व्यवहार में हिंदी व्यवहार हम एवं सेटा ओडिया मान को विशेष भाव व्यतीत करथिला एवं आमे यही जो पश्चिम ओडिशा जो भाषा आंदोलन
आगे नेबाई सब पश्चिम ओडिशार कवि गंगाधर मेहर यही जाति प्रति भाषा प्रति तांकर जो अवदान निश्चित भाव उल्लेखनीय एवं ये अस्मिता सहित पश्चिम ओडिशा रे जो भाषा आंदोलन एक दिग्दर्शन भाव समस्त को साहाय्य करथिला। भाषा आंदोलन रे पश्चिमांचल लोक मैंने जयलाभ कले। कोर्ट कचेरी हिंदी भाषा बदले ओडिया भाषा चलला एवं 1862 पुणी यहाँ आम देखा जे जो अंचल गुड़िक आम एवं ओडिया बाहर आम रही जाइए। एसआरसी सीमा कमिशन रे बहुत रे आम ओडिया छात्र छात्री माने स्कूल कॉलेज रे विश्वविद्यालय रे लगिले किंतु सेटा आम पाइला नहीं। 6,000 खर्च आमको से मैंने देइथिले किंतु पुनर्बार आम पाखु नहीं गले। तेणु यो स्वतंत्र भाव में ओडिशा प्रदेश गठन है। ओडिया अस्मितार बलवत्तर रहा एवं एथिपाई जो महामनीष माने आम परिश्रम करी ये जाति को एकत्रित करी आमको एटा प्रदान कले तांको पाखे आम चिर ऋणी। एबे ओडिया अस्मितार गोटे भिन्न स्वर शुणा मिलूँ सेटा हे तो एत प्रबल भाव में हो पारि ना जे ओडिशा को भाग करने वर्तमान गोटे भिन्न स्वर अनेक समय आसूँ मझी मझे सेटा ओडिया अस्मितार विरुद्धाचरण करुँची। जाति आमर मूल ठाकुर जगन्नाथ गोटे जाति आम ओडिया आमर बड़ सुंदर महोदधि यही जो भावना समस्त रहा कथा एवं मधुबाबू जो आमको यही जो महानीति शिक्षा देते जे समस्ते स्वाभिमान बंची रख तांकर जन्मदिन स्वाभिमान दिवस पालन हो एवं आम देखा जे आम यही जो एकत्रीकरण निश्चित भाव से आमको नूतन पथ आम उन्मुक्त करिछि। आमे आमर ओडिया अस्मिता आम वर्तमान गर्वित आमर जातीयता आम गर्वित एवं यही जो ओडिया भाषाभाषी अंचल वर्तमान बाहर रहीगला सहीटा आम तो चेष्टा कलु तो पाइबानी। एवं मालकानगिरी रे सेठी रेवेन्यू वाला केतरा गाँव से बहुत असुविधा पाँच यही प्रदेशर कार्ड से प्रदेशर कार्ड से मैंने से कतोटी सीमा भितर गाँ गुड़िक सुप्रीम कोर्ट कौन सी मीमांसा पर्यटन दे पारि ना। तेणु ओडिया अस्मिता से व्याहत होती। आज आम देखा जे आम यही जो अस्तित्व अस्मिता जो संकट निश्चित भाव में एक लाइट तेणु आम देखा जे पृथ्वी रे जो विभिन्न प्रकार नेशनलिज्म बा जातीयता बोध जो देश जिते प्रबल से देश से परिमाण रे
ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 1866 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ମହାବିପତ୍ତି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଦ୍ରୁତ କରିବାରେ ଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ। ମଧୁବାବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆହୁତି କଲେ ଟାଣେ କିରେ ଦାନା। এইଭଳିଆ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର 70 ବର୍ଷ ପରେ 1936ରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ଗଠନ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା। ଭାଷା ସହ ଆମର ଅନେକ ସମୟ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅସ୍ମିତା ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋଷଣ କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଆମ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ପେଟ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ। ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ 2-4ଟା ବାବୁ ବେଗ ଉଡ଼େଇକିରି ପଛ ପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଚାରିବେ ତ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ନାହିଁ, ତାମିଲନାଡୁ ଆସୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 5-6ଟା ଶବ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୁବାଇରେ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ସବୁ ମିଶନ ଏମ୍ବାସିକୁ ଲେଖାଲେଖି କରିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଗେଇଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବିପଦାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିକିରି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସେଇଠି ଆମର ଏଇଠି କାହିଁକି ଏତେ ଖଣି ଥାଇ ଆମ ପିଲା ପଦାକୁ ଯିବେ? ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇଥାନଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇଟା ଓପନିଂ ଡେରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଲୁ ଯେ କେତେ ଜଣ ସେଇଠି ଇଥାନଲ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର କାମ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିହାର ବଙ୍ଗଳା ଦେଶରୁ ଆସିକି ସେଇଠି ଇଥାନଲ। ସେଠି କ'ଣ ସେଇଟା ମଦ ତିଆରି ପରିବେଶରେ କରା ଜାଗା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ। ସେ ମାଲିକ ଯାହା କରୁଛି, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଦେଇଛି, ବାକି ସବୁ ପଦାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଦାପନ୍ନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ତ ଆମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସ୍ମିତାକୁ ଜଳାଜଳି ଦେଇ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବା? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି ନାଁଟା ସବୁ ମନରେଗା କରୁଛନ୍ତି? ସେ ମନରେଗା ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଯାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନାଁଟା ସବୁ ବିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯଦି ଗତି କରିବ, ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେବା, ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଏବଂ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଅତୀତର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ସେଇଠି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା, ବେଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା, ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୁଲ ତଳେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା।
बहुत 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 सुंदर वक्तव्य सार आपणकर ओडिया अस्मितार इतिवृत्त विषय रे प्रथम रु शेष पर्यंत आपण वर्णना करिगले अस्मिता विषय रे। उत्कल महिमा आमरी गारिमा से जे अक्षय अक्षुण्ण ओडिया ଆଉ କିଛି ସମୟ अस्मिता। ଅଛି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କହିବେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା हाँ, ଉପରେ। ओडिया अस्मिता सदा संजीवित ओडिशा बुकुर प्राण। ओडिया अस्मिता भाषा और संस्कृति ऐतिह्य गौरवमय संस्कार संयम नीति परंपरा ओडियार परिचय ओडियार परिचय। बहुत सुंदर उपस्थापना करथिले सर। वर्तमान यारी उपरे किछि जदि प्रश्न थाए कहा मनरे ताहेले उपस्थापना करबा को मु अनुरोध रखे। ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ हाँ ठीक अच्छे। ଟିକେ ଆଲୋକପାତ ए କରିବେ। भव्य सभार सभापति को मु अनुरोध जनाए से ओडिया अस्मितार इतिवृत्त प्रसंग उपरे रखिथिबा वक्तव्य को आधार करी एक संक्षिप्त सारांशर उपस्थापना रखिबा। स्वागत सर आपनको। धन्यवाद भौणी। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आम ओडिया जाति ओडिया अस्मिता को प्रभु श्री जगन्नाथ प्रभु श्री बलभद्र माँ सुभद्रा सबुबले तांकर आशीर्वादर छत्र तले घोड़ाई रखितांतु। एई दिवसरे सेही जगतर ठाकुर जगन्नाथ को ए प्रार्थना अति सुंदर भावरे आजिर वक्ता श्रीजुक्त पाणिग्राही ओडिया अस्मितार इतिहास कथा वर्णना कले। प्रांजल भावरे वर्णना करी आमको अवगत कले ओडिया अस्मिता कौन। ओडिया अस्मिता यह एक नूतन दिगंत सृष्टि करिछि। एबे एबे एडे चर्चा को आसीछि। ओडिया जातिर संस्कृति ऐतिह्य हेउ भाषा बा परंपरा हेउ ऐतिहासिक गौरव हो बा स्वाभिमान हेउ ये सबू को नहीं ही ओडिया अस्मिता। ओडिया अस्मिता हेउछि ओडिया लोक मानकर निजस्व परिचय और अस्तित्व सहित यह संपृक्त हो रही। विशेष भाव में आम ओडिया अस्मितार कथा जेतेबेले चिंता करूँ एठी भाषा को प्राधान्य दिया जाई पारे। ओडिया भाषा भारतर संविधान गोटे भाषा भाव में परिचय सृष्टि करि पारिछि। यह आम पाई गौरव। आम जदि साहित्य क्षेत्र को जीवा सरल एवं गभीर भाषा रे अनेक काव्य कविता गद्य नाटक ओडिया साहित्य सृष्टि करि सारिछि जहाँकि आम ओडिया मानकर ओडिया अस्मितार एक परिचय दे सारिछि। आम यदि संस्कृति परंपरा कथा चिंता करिबा ताहेले ओडिशा रे 12 मासरे 13 जात विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा एटा कोन आमर ओडिया अस्मितार परिचय देउना कि आमने जदि इतिहास पृष्ठा उलटाइबा ताहेले कलिंग युद्ध तार विभीषिकारे सम्राट अशोकंकर मनरे परिवर्तन ओडिशार स्वाधीनता आंदोलन भाषा आंदोलन यह निश्चित भाव में ओडिया अस्मितार गोटाए गोटाए गंभीर अध्याय। यदि आम अर्थनैतिक एवं आमर देशर शिल्प उपरे चिंता करिबा एठी
जो रसगोलार गोटे पट्टचित्र आसूची अनेक जो शिल्प संस्कृति आम ओडिशा रे आमे देखिबा को पाउछु यह भी ओडिया अस्मितार गोटाए निश्चित भाव में परिचय स्वतंत्र सृष्टि करि पारिछि तेणु ओडिया अस्मिता आम ओडिया जातिर संस्कृति आम ओडिया जातिर परंपरा भाषा इतिहास अस्तित्व एटा हमर गर्व एवं परिचय तेणु ओडिया अस्मिता को रक्षा करिबा पाई भाषार चर्चा ऐतिहासिक अवदान को निश्चित भाव में आमको स्मरण करने को पड़ो नूतन पीढ़ी को संस्कृति एवं परंपरा को शिखेबार एक प्रकृत समय तेणु ओडिया जाति ओडिया अस्मिता आम पाई एक चैलेंज हो रही तेणु आगामी पीढ़ी ये सब उपरे निश्चित भाव में दृष्टि रखिबार अच्छी एवं आज जो आलोचना चक्र आम पाई अनेक शिक्षणीय होइछि श्रीयुक्त पाणिग्राही अत्यंत सुंदर भाव में इतिहास पुस्ता को ओलटाई ओडिया अस्मितार कथा कहूथिले बहुत खुशी लगिला निश्चित भाव में आमे जो माने उपस्थित रहीचे ए कार्यक्रम रे पाठचक्र रे आमे ओडिया बोली आहुरी गर्व करिवार गोटाए माध्यम आज आलोचना चक्र तेणु विशेष भाव में आगु को समय नेबी नाही आगामी कार्यक्रम को बढ़ेवा पाई आगे नेवा पाई सुश्री नीलकांति पट्टनायक को मु अनुरोध रखिबी। धन्यवाद सर। वर्तमान आसर उपस्थित थुआ एक बलिष्ठ व्यक्तित्वधारी व्यक्तित्व जे कि आम विवेकानंद साहित्य संसद सुवर्णपुर सभापति अटंती श्री देवेंद्र विजय साहू को अनुरोध रखिबी से अद्य आसर धन्यवाद पर्वटी को आगे नेबा स्वागत सर आपको। सर पाणिग्राही सर आपन टिके म्यूट हे जानतु आउ संगठन सर आज उपस्थित आरंभ रही शेष पर्यंत अछंती आमर संस्थार वरिष्ठ सदस्य तांकु मु प्रणाम जनाउछि आउ तांकु मध्य मु बहुत धन्यवाद जनाउछि आउ जो माने अन्य माने उपस्थित अछंती आमर संसद रो से समस्त को मु धन्यवाद जनाउछि। आज आमर ये उत्कल मातांकर जो वंदना कले तपस्विनी पट्टनायक मैडम को तांकु बहुत धन्यवाद जनाउछि आउ जमुना भौणी विवेकानंद वाणी सुंदर भाव में पठन कले आउ से जमुना भौणी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करुछि। तापरे आज आमर सभापतित्व करिथिबा धीरेन्द्र सार तांकर बहु कार्य व्यस्तता मध्यरु समय बाहर करी आमे तांको अनुरोध करबा मात्रे से दायित्व बहन करबा पाए आगभर हेले आउ आमर सोनपुर जिल्लार ये धीरेन्द्र सार एक बलिष्ठ खम्ब कहले अत्युक्ति हेब नाही आउ तांकर दिग्दर्शन बा तांकर समय दबाटा तांकर प्रेरणा सब किछि पाई आमे अभिभूत आउ तांको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करिछि मु। आउ आज वक्ता श्रीयुक्त हरिबंधु पाणिग्राही सार से इतिहास गवेषक से एबे मध्य इंडियन एक्सप्रेस रे तांकर किछि किछि वक्तव्य प्रदान करुछंती बयस तांको पाखरे हार मानिनी आउ से एबे मध्य बहुत पुस्तक अध्ययन करुछंती आउ आम मान को जो सब परिवेषण कले आउ आम आगे जो सब रखले विषय वस्तु
अस्मिता ओडिया अस्मितार सेथिपाई मु बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा को कृतज्ञता जनाऊँगी आज्ञा को प्रणाम करुछि आ धन्यवाद जनाऊँगी सभा शेष समस्त को पुणी थे धन्यवाद जन कार्यक्रम सफल रूपायन कर समस्त को बार बार मु धन्यवाद जन मोर धन्यवाद पर्व को समाप्त करुछि। हरि ओम तत्सत।